زبور کی دوسری کتاب سام 42 زبور 42واں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 43واں۔ اے خدا میرا انصاف کر، اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 44واں۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا، کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا،
کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کے باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا، اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ زبور 45۔ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر
अपनी शान शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल अबाद है। तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और औद और तज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहजादियां हैं। मलका तेरे दाहिने हाथ औफेर के सोने से आरास्ता खड़ी है। ऐ बेटी, सुन, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदा है। तू उसे सिजदा कर, और सौर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सर तपा हुस्न अफरोज है। उसका लिबास जरबफ्त का है। वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कुंवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। वो उनको खुशी और खुर्मी से ले आएंगे। वो बादशाह के महल में दाखिल होंगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे, जिनको तू तमाम रुए जमीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा। इसलिए उम्मतें अब्दुल अबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। ज़बूर 46वां। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तादिद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो, और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश न होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाईं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई। वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ, खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेजे के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूंगा। मैं सारी जमीन पर सर बुलंद हूंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। ज़बूर 47वां। ऐ सब उम्मतों, तालियां बजाओ,
خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا، اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ زبور 48واں۔ ہمارے خدا کے شہر میں، اپنے کوہ مقدس پر، خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون، جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو، بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا، اور ایسے درد نے جیسا درد زے۔ تو پوربی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا، خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا، جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ تیرا داہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے، تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو۔ یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں، سیون کے گرد پھرو اور اس کا طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ زبور 49واں۔ اے سب امتوں، یہ سنو، اے جہان کے سب باشندوں، کان لگاؤ۔ کیا ادنا، کیا اعلی، کیا امیر، کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی، اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا، میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں، جب میرا تعقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے۔
वो अब तक अदा न होगा, ताकि वो अब तक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ व हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। उनका ये तरीक उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। वो गोया पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं। मौत उनकी पासबान होगी, दयानतदार सुबह को उन पर मुसल्लत होगा और उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेठिकाना होगा। लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ न कर, क्योंकि वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खा जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा की गिरोह से जा मिलेगा। वो रोशनी को हरगिज न देखेंगे। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। जबूर 50वां। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयोन से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा
اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ زبور 51۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں
اور सोख्तनी कुर्बानी और पूरी सोख्तनी कुर्बानी से खुश होगा, और वो तेरे मज़बा पर बछड़े चढ़ाएंगे। जबूर 52। ए जबरदस्त, तू शरारत पर क्यों फख्र करता है? खुदा की शफकत दायमी है। तेरी जुबान महज शरारत ईजाद करती है। ए दगाबाज, वो तेज उस तरह की मानिंद है। तू बदी को नेकी से ज्यादा पसंद करता है और झूठ को सदाकत की बात से। ए दगाबाज जुबान, तू मोहलक बातों को पसंद करती है। खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। वो तुझे पकड़कर तेरे खैमा से निकाल फेंकेगा और जिंदों की जमीन से तुझे उखाड़ डालेगा। सादिक भी इस बात को देखकर डर जाएंगे और उस पर हंसेंगे कि देखो, ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह ना बनाया, बल्कि अपने माल की फरावानी पर भरोसा किया और शरारत में पक्का हो गया। लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं। मेरा तवक्कुल अब्दुल अबाद खुदा की शफकत पर है। मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये किया है, और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। जबूर 53। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है। कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की, ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए, वो बाहम नजस हो गए। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बद किरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी, और खुदा का नाम नहीं लेते? वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, गो खौफ की कोई बात ना थी, क्योंकि खुदा ने उनकी हड्डियां जो तेरे खिलाफ खैमा जन थे बखेर दी। तूने उनको शर्मिंदा कर दिया, इसलिए कि खुदा ने उनको रद्द कर दिया है। काश के इस्राएल की निजात सयोन में से होती, जब खुदा अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा, तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। जबूर 54। ऐ खुदा, अपने नाम के वसीला से मुझे बचा और अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर। ऐ खुदा, मेरी दुआ सुन ले, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा, क्योंकि बेगाने मेरे खिलाफ उठे हैं और तुंदखो लोग मेरी जान के खाहा हुए हैं। उन्होंने खुदा को अपने रूबरू नहीं रखा। देखो, खुदा मेरा मददगार रहे। खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है। वो बुराई को मेरे दुश्मनों ही पर लौटा देगा। तू अपनी सच्चाई की रूह से उनको फना कर। मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि वो खूब है, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है, और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। जबूर 55। ऐ खुदा, मेरी दुआ पर कान लगा,
اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے، تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی، اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے، اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ لیکن اے خدا، تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا۔ خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ زبور 56۔ اے خدا، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔
ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا، قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہیں؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا، تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ زبور 57۔ مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پاؤں کے سایہ میں پناہ لوں گا، جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالی سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا، جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی اپنے لوگوں میں جن کے دانت برچھیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے، اے خدا، میرا دل قائم ہے۔ میں گاؤں گا، بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت، بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو۔ میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ زبور 58۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو، اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے عفی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی دھاڑیں توڑ ڈال۔
वो घुल कर बहते पानी की मानिंद हो जाएं। जब वो अपने तीर चलाए तो वो गोया कुंद पैकान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे गूंगा जो गुल कर फना हो जाता है, और जैसे औरत का इस्कात जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों को कांटों की आंच लगे, वो हरे और जलते दोनों को यकसां बगोले से उड़ा ले जाएगा। सादिक इंतकाम को देखकर खुश होगा। वो शरीर के खून से अपने पांव तर करेगा। तब लोग कहेंगे, यकीनन सादिक के लिए अजर है। बेशक खुदा है जो जमीन पर अदालत करता है। जबूर 59। ऐ मेरे खुदा, मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा। मुझे मेरे खिलाफ उठने वालों पर सरफराज कर। मुझे बदकारों से छुड़ा और खूनखार आदमियों से मुझे बचा, क्योंकि देख, वो मेरी जान की घात में हैं। ऐ खुदावंद, मेरी खता या मेरे गुनाह के बगैर जबरदस्त लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। वो मुझ बेकसूर पर दौड़ दौड़ कर तैयार होते हैं। मेरी कुमक के लिए जाग और देख। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, इस्राएल के खुदा, सब कौमों के मुहासबा के लिए उठ। किसी दगाबाज खताकार पर रहम ना कर। वो शाम को लौटते और कुत्ते की तरह भौंकते हैं और शहर के गिर्द फिरते हैं। देख, वो अपने मुंह से डकारते हैं। उनके लबों के अंदर तलवारें हैं, क्योंकि वो कहते हैं, कौन सुनता है। पर ऐ खुदावंद, तू उन पर हंसेगा। तू तमाम कौमों को ठट्ठा में उड़ाएगा। ऐ मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। मेरा खुदा अपनी शफकत से मेरा पेशरो होगा। खुदा मुझे मेरे दुश्मनों की पस्ती दिखाएगा। उनको कत्ल ना कर, मुबादा मेरे लोग भूल जाएं। ऐ खुदावंद, ऐ हमारी सिपर, अपनी कुदरत से उनको परागंदा करके पस्त कर दे। वो अपने मुंह के गुनाह और अपने होंठों की बातों और अपनी लानतान और झूठ बोलने के बायस अपने गरूर में पकड़े जाएं। कहर में उनको फना कर दे ताकि वो नाबूद हो जाएं, और वो जमीन की इंतहा तक जान लें कि खुदा याकूब पर हुक्मरान है। फिर शाम को वो लौटें और कुत्ते की तरह भौंकें और शहर के गिर्द फिरें। वो खाने की तलाश में मारे मारे फिरें, और अगर आसूदा ना हो तो सारी रात ठहरे रहें। लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह। ऐ मेरी कुव्वत, मैं तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा शफीक खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। जबूर 60। ऐ खुदा, तूने हमें रद्द किया, तूने हमें शिकस्ता हाल कर दिया। तू नाराज रहा, हमें फिर बहाल कर। तूने जमीन को लर्जा दिया, तूने उसे फाड़ डाला है। उसके रखने बंद कर दे, क्योंकि वो लर्जा है। तूने अपने लोगों को सख्तियां दिखाई। तूने हमको लड़खड़ा देने वाली मै पिलाई।
जो तुझसे डरते हैं तूने उनको एक झंडा दिया है, ताकि वो हक की खातिर बुलंद किया जाए। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी कदूसियत में फरमाया है, मैं खुशी करूंगा, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और सुकात की वादी को बांटूंगा। जेलाद मेरा है, मनस्सी भी मेरा है, इफ्राइम मेरे सिर का खुद है, यहूदा मेरा आसा है, मुआब मेरा चेलची है। अदोम पर मैं जूता फेंकूंगा। ए फिलिस्तीन, मेरे सबब से ललकार, मुझे उस मोहकम शहर में कौन पहुंचाएगा? कौन मुझे अदोम तक ले गया है? ए खुदा, क्या तूने हमें रद्द नहीं कर दिया? ए खुदा, तू हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। मुखालिफ के मुकाबला में हमारी कुमक कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। खुदा की मदद से हम बहादुरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालिफों को पामाल करेगा। ज़बूर 61। ए खुदा, मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खैमा में रहूंगा, मैं तेरे परों के साया में पनाह लूंगा, क्योंकि ए खुदा, तूने मेरी मन्नतें कबूल की हैं। तूने मुझे उन लोगों की सी मेरास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। वो खुदा के हजूर हमेशा कायम रहेगा। तू शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहैया कर। यूं मैं हमेशा तेरी मदा सराई करूंगा, ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करूं। ज़बूर 62। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश न होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश न होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो। अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ,
खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये दोबारा सुना कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी ऐ खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। जबूर 63। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है, और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो जमीन के असफल में चले जाएंगे, वो तलवार के हवाला होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे। लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा, जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। जबूर 64। ऐ खुदा, मेरी फरियाद की आवाज सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, शरीरों के खुफिया मशवरा से और बदकिरदारों के हंगामा से मुझे छुपा ले, जिन्होंने अपनी जुबान तलवार की तरह तेज की और तल्ख बातों के तीरों का निशाना लिया है, ताकि उनको खुफिया मुकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। वो उनको नागेहां उस पर चलाते हैं और डरते नहीं। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं। वो कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वो शरारतों को खोज खोज कर निकालते हैं। वो कहते हैं, हमने खूब खोज लगाया। उनमें से हर एक का बातिन और दिल अमीक है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। वो नागेहान तीर से जख्मी हो जाएंगे, और उन्हीं की जुबान उनको तबाह करेगी। जितने उनको देखेंगे सब सिर हिलाएंगे, और सब लोग डर जाएंगे और खुदा के काम का बयान करेंगे, और उसके तरीके अमल को बखूबी समझ लेंगे। सादिक खुदाबंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कुल करेगा, और जितने रास्त दिल हैं सब फख्र करेंगे। जबूर 65। ऐ खुदा, सयोन में तारीफ तेरी मुंतजिर है, और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बादमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे।
हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो जमीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। जमीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मोजज़ों से डरते हैं। तू मतलब सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब माला माल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है, तू उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेघारियों को खूब सैराब करता और उसके मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नर्म करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चिरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। जबूर 66वां। ऐ सारी जमीन, खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो, तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिजी करेंगे। सारी जमीन तुझे सिजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी। वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया। वो दरिया में से पैदल गुजर गए। वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बुर ना करें। ऐ लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सिरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। मैं सोख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल हूंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा। जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी, मैं मोटे मोटे जानवरों की सोख्तनी कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूंगा। ऐ खुदा से डरने वालो, सब आओ, सुनो।
اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو، جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ زبور 67۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ زبور 68۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یاہا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے۔ لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈھے ہوئے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں،
तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सकूनत के लिए पसंद किया है, बल्कि खुदावंद उसमें अबद तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हा हजार हैं। खुदावंद जैसा कोहे सीना में, वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो, जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पांव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहां छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है। यहूदा के उमरा और उनके मुशीर, जुबलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है, उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से, जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गौल को और कौमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ जमीन की मुमलकतो, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदा सराई करो, उसकी जो कदीम फलकुल अफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज में कुदरत है। खुदा ही की ताजीम करो, उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ऐ खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। जबूर 69। ऐ खुदा, मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं, जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूं, जहां सैलाब मेरे सिर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सिर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के खाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं, मुझे देना पड़ा। ऐ खुदा,
تو मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हों। ऐ इस्राएल के खुदा, तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हों, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मलामत उठाई है। शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं और अपनी मां के फर्जंदों के नजदीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बायस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए जरबुल मिस्ल ठहरा। फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं नशाबाजों का गीत हूं। लेकिन ऐ खुदावंद, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ऐ खुदा, अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराओ मुझे निगल ना जाए और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। ऐ खुदावंद, मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जो हो। अपने बंदा से रूपोशी ना कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। जल्द मुझे जवाब दे, मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रुसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूं और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजिर रहा, पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को अंदरेन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गजब उन पर उंडेल दे और तेरा शदीद कहर उन पर आ पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई ना बसे, क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं और जिनको तूने जख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हों। उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और सादिकों के साथ मुंदरज ना हों। लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूं। ऐ खुदा, तेरी निजात मुझे सर बुलंद करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये खुदावंद को बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा। हलीम इसे देखकर खुश हुए हैं। ऐ खुदा के तालिबो, तुम्हारे दिल जिंदा रहें, क्योंकि खुदावंद मोहताजों की सुनता है और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता।
आसमान और जमीन उसकी तारीफ करें, और समुंदर और जो कुछ उसमें चलता फिरता है। क्योंकि खुदा सयोन को बचाएगा और यहूदा के शहरों को बनाएगा, और वो बसेंगे और उसके वारिस होंगे। उसके बंदों की नस्ल भी उसकी मालिक होगी, और उसके नाम से मोहब्बत रखने वाले उसमें बसेंगे। जबूर 70। ऐ खुदा, मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं, वो सब शर्मिंदा और खजल हों। जो मेरे नुकसान से खुश हैं, वो पिस्पा और रुस्वा हों। आहा हा करने वाले अपनी रुस्वाई की वजह से पिस्पा हों। तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हों। तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदा की तमजीद हो। पर मैं गरीब और मोहताज हूं। ऐ खुदा, मेरे पास जल्द आ। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ खुदावंद, देर न कर। जबूर 71। ऐ खुदावंद, तू ही मेरी पनाह है। मुझे कभी शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा। मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सकूनत की चट्टान हो, जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और बेदर्द आदमी के हाथ से छुड़ा। क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही मेरी उम्मीद है। लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है। तू मेरी मां के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूं, लेकिन तू मेरी मोहकम पनागाह है। मेरा मुंह तेरी सताइश से और तेरी ताजीम से दिन भर पुर रहेगा। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क न कर, मेरी जायफी में मुझे छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं, और जो मेरी जान की घात में हैं, वो आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। उसका पीछा करो और पकड़ लो, क्योंकि छुड़ाने वाला कोई नहीं। ऐ खुदा, मुझसे दूर ना रह। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना हो जाएं। मेरा नुकसान चाहने वाले मुलामत और रुस्वाई से मुलब्बिस हों। लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा और सिर सफेद हो जाऊं, तो मुझे तर्क न करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर आने वाले पर जाहिर न कर दूं। ऐ खुदा, तेरी सदाकत भी बहुत बुलंद है। ऐ खुदा, तेरी मानिंद कौन है,
जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। तू जिसने हमको बहुत और सख्त तकलीफें दिखाई हैं, फिर हमको जिंदा करेगा और जमीन के असफल से हमें फिर ऊपर ले आएगा। तू मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। ऐ मेरे खुदा, मैं बरबत पर तेरी सच्चाई की हम्द करूंगा। ऐ इस्राएल के कद्दूस, मैं सितार के साथ तेरी मदा सराई करूंगा। जब मैं तेरी मदा सराई करूंगा तो मेरे होंठ नहायत शादमान होंगे, और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया है, और मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान हुए हैं। जबूर 72। ऐ खुदा, बादशाह को अपने अहकाम और शहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा। वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ियों से सदाकत के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा। वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जब तक सूरज और चांद कायम हैं, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे। वो कटी हुई घास पर मी की मानिंद और जमीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। उसके अय्याम में सादिक बरोमंद होंगे, और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। तरसेस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। सबा और सेबा के बादशाह हदिया लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। कुल कौमें उसकी मुती होंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा, और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उनको दिया जाएगा। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे। वो दिन भर उसे दुआ देंगे। जमीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी। उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा, और शहर वाले जमीन की घास की मानिंद हरे भरे होंगे। उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। खुदावंद खुदा, इस्राएल का खुदा मुबारक हो। वही अजीबो गरीब काम करता है। उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो, और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दाऊद बिन यस्सी की दुआएं तमाम हुईं।